रुपयांक 3 हावजी आणि समजा कोणाक एका हावजीन 5 नंबर लागले जाल्यार 3 हावजी घेवन येवपाक जाय. सिंगल हावजी पैसे मेळचे ना. सो एक 3 हावजी एखादे आसपाक जाय आणि एका हावजीन 5 नंबर जावपाक जाय. सो आय रिक्वेस्ट कोणाला जर पाहिजे हावजी तर आपले पोरं हावजी घेऊन येणार आहे. त्यांच्याकडनं या पहिल्या ओव्हरमध्ये हावजी घ्यावेत आणि आपला लक चेक करावा. थँक्यू. So both the officials are making their way out to the center for this quarter-final 3 of Group C. Bhavan Sports Saish 11 Malvan taking on Aimauli Kudal. Bhavan Sports Saish 11 Malvan winning the toss and deciding to bowl first. Requesting the 12th man of Aimauli Kudal to please be in the com box. विनंती असेल aimauli Kudal यांच्या अतिरिक्त खेळाडूकडे की त्यांनी आपण समालोचक कक्षामध्ये यावून आपली बसका घ्यावी. Shortly, the batsmen will walk in as Aimauli Kudal send their 2 batsmen in. Bhavan Sports Saish 11 Malvan. They have been superb with their gameplay today. Winning all their matches previously, and now this is the game where either of these two teams will make it into the semi-final cut. Winning the toss, deciding to bowl first, Bhavan Sports Saish 11 Malvan. In the middle, 2 men. Lokesh Meena is in supreme touch in this MCT 2025 Season 7. Along with him is his skipper, Sohail Sheikh. In total of 21 lakh subscribers for the tenniscricket.in. That's the figure that we achieved over the course of 3 days, 3 nights. And also 12 lakh 43,000 people viewing
this entire tournament. It's growing. Just the third night. Tomorrow and day after tomorrow, maybe we'll definitely cross more than 20 lakhs. So how popular and how good this sport is. Last 2 nights we had 2 Goan teams that reached the semi-finals. Now, tonight, on the third night, it is the teams from Sindhudurga battling it out for the place in the semi-finals. Sohail Sheikh on strike. And here's Akshay Patil. Starts off with the full toss. That's gone over the head. Pais Almeida does well. Applies the break in. And that will be couple and wide as well. In total of 3 runs at the beginning. In my commentary team, I've got the senior most commentator, Sir Prashant Adavde. Along with Sir, we have Samir Pandre, Sir, and also Nana Parab, Sir. Swing and a miss. Trying to go downtown. Maybe over covers would have been a better option. Journey of this MCT, the last 7 seasons, has been excellent. Just earlier, Sanju Narvekar Bhai explaining and telling how difficult it is to get the tournament. There goes Sohail. And he goes down the ground with a maximum. Half a dozen runs down the ground. Gets off the mark with a 6. Does Sohail Sheikh. Maybe DJ Sandeep is busy with something. Battery.ai powering this Mandrim Champion Trophy 2025. Reached for it. And Prajesh Ravle almost taking a blinder. Earlier today took some beautiful catches. And now this would have been a spectacular effort. Full marks have to be given for that effort. Just couldn't quite reach in time. 2 more runs added. Score moves on to 11. Akhil Parab with the scoring. The manual scoring. Full toss in the gap. That's running towards the field. And that will go into the boundary. Fast outfield here into him. You get full value for your shots once you clear that infield. And off and running the Aimauli Kudal. Maybe trying to get at least 70-80 on the scorecard with the prowess of the opposition team. The bowling team right now, Bhavian Sports, Saish 11, Malvan, have got some power hitters. Swing, missed. Again, trying to hit it onto the onside. Missed out. 15 runs on the scorecard so far within the first 5 deliveries. That's up in the air. Keeper taken. Yogesh Paintkar will get you to know this is his 11th, 8th catch. 8th catch for Yogesh Paintkar. And he gets that big wicket of Sohail Sheikh. Trying to again go on the onside. Missed out. Top edged. And the keeper took it quite comfortably, Yogesh Paintkar. Service All India, one national tournament, 12 state of India, 12 state level award, one national award, IT sector. New man in Rupesh Tandil. We're talking about some legendary players. We've got one in the Combox. We have Prashant Adivde sir, 26 All India tournaments, 1 national tournament,
12 states in India, where he has commentated 12 state level awards, one national award, and ITC award. So you can see so much of experience and so much of exposure that sir has got. Truly, so many feathers in his cap. Feels privileged to share commentary with him. Meanwhile, Darshan Bandekar has opted to bowl. Starts off with a short delivery and gets a welcome. And that's taken. Prajesh Rawle, you just can't keep that man out of the game. And Meena departs. Well, he was looking so good trying to take on Darshan Bandekar and had kept one man on the fence, and he found him perfectly. Till now, 85 runs in the tournament by Lokesh Meena, and he departs 15 for 2. I Mauli Khudar. Exciting talent in the Malvan camp. Darshan Bandekar leads the side most of the times, but the insurgence of Yogesh Pendkar has brought new lease of life in their play, as he's a calm, cool captain. He's a successful captain. Yogesh Pendkar looks after his players and always so calm. Just got to meet the umpires down below during the dinner time, and they said he just calmly explains it to every player. That's what is needed. And that's kind of confidence that you give to every individual on the park, which is very necessary. Once you start shouting at the players, once you give some kind of different inputs, the player feels that he doesn't belong to the level. But the kind of atmosphere that Yogesh Pendkar has created in this game for this particular side, that is the Bhavyan Sports Saish 11 Malvan, truly amazing. Credit has to be given to the owner as well for selecting such an icon. Full toss. That is dispatched. Someone is striking it behind, and it's gonna go over his head. 2 more runs added. Sachin Nachrekar trying to get underneath, but always difficult. You're running backwards. Ball always traveling over your eye line. Ripped onto the legs. Quick delivery. Bowling from round the stumps, and that angle that he creates is to just push it in. And that pushing it in has sometimes get the batsman in danger. Bowling it full, bowling it straight. Darshan Bandekar. Short delivery this time, much wider, and that will be wide. Extras. Score moves on to 18 for 2. Has been pretty slow going apart from the previous over where they got a boundary, a maximum as well. Good delivery again. Excellent delivery. Changing his pace. Has got the experience. Darshan Bandekar has been the icon for so many teams across Goa, Maharashtra, Karnataka, and all India level tournaments. That's up in the air. Pendkar again. You just forget about it when it's that man underneath. Blink of an eye, and also he will take that catch with closed eyes. 18 for 3. 9th catch for him. I Mauli Khudar in deep trouble now after 2 overs. 18 for 3.
New man in, Sonu Rane. 18 for the loss of 3 after 2 overs. And it will be Pius Almeida from the opposite end. (18) for the loss of 3. Ajit Achrekar providing us with all the info on the scorecard from the tenniscricket.in, digital scoring. Akhil Parab, the computer scorer, who has been very busy with all his stats, whispering in our ears most of the times, giving us the accurate information about each and every player, keeping all the records, just like a 12th man of each and every team. (18 for 3). Third over. Nicely played over covers. Couple of bounces into the hands of the fielder. Vicky Roge does well and throws it back. Another single taken. 19 for 3. Gets off the mark with a single, does Rupesh Tandil. On that screen you can have a look at the game. If you are on the park, it's all filled. The streets as well as the VIP podium and all the 3 stands that are created specially for all the viewers. More than 12,43,000 viewers across the globe that are just digitally that we can brought to you. 12,43,000. Definitely Gaurav Sawant and his team will be very happy, and also the organizers Mahesh Bhai Konadkar, Sanju Bhai Nagvekar and all his rest of the team. The kind of impetus that has been got. That's a no ball. No ball given by the umpire, and the television umpire has been referred to. TV umpire to director, we have a player review for the no ball. First we'll check the feet, it's a fair delivery, then we move on to the spin vision. The keeper collected it cleanly just to check whether if it's above the waist height or it's not. So it's a no ball. So quickly that decision comes as well. It's a no ball and this will be a free hit. One of our fellow commentators, I watch him and also replicate him sometimes. Amol Jamdade sir. Ugda dore bagani pudsa chendu, free hit. That's the thing right now. Free hit time. Let's see if the batsman Sonu Rane, can he take a part? He certainly tried for it. Miscued though. On the bounce, Prajesh Ravale, he is electric on the park. Fabulous catches tonight. And also on the park, he has not to be seen where any lapses in his fielding efforts. 100% commitment. A single taken, score moves on to 21 for 3. Left-handed batsman, a slow delivery, and will just find one. Meantime, Darpan with that bit of fumble. That's up in the air. Fielder backpedaling. Oh, makes a complete meal out of that one, Sachin Achrekar. Was in the air for a bit. And that was a put down.
Chance gone begging. And that too of Sonu Rane. Of Rupesh Tandil. Sonu Rane's catch was dropped. He was batting on 1 at the time. Reverse sweep attempted. Again, chance gone. After completion of the third, it's 23 for 3. 23 for 3 after completion of 3 overs. 5 runs coming from that over. Apart from that no ball, he is pinpoint. Highest scorer of the tournament so far, Rajat Kulalkar, 99 runs. Just behind him, Lokesh Meena with 85 runs. Well, his teammates need to support him. He's gone early this time around, but now this pair needs to get a partnership. Thank you, Sham. Now it's housey time. Good evening, all. आम्ही खेळटा जल्दी 5 कॅश प्राइज 5,000 रुपीज 5,000 रुपया एका हाऊजीन 5 नंबर जावपाक जाय आणि 3 हाऊजी वांगडा घेऊन येवपाक जाय. हाऊजी जर समज सिंगल आहा जाल्यार आमी अलाव करचे ना, डिस्क्वॉलिफाईड. आलोन दोलोन पयलो नंबर काडटा. स्टार्ट ऑफ द गेम. फर्स्ट नंबर 8 and 6 86 80 आणि 6 86. Start of the MCT over, and it's bowled by Akshay Patil. Bowled the first over. First power play over, went for 15 runs, picked up a wicket as well in that over. And now the MCT over, where all the fielders are inside the 30-yard ring. Good delivery again. Looking for a quick single. Chance of run out. Oh, directed would have been gone for all money. Leg by is a signal given. Would have been his 4th run out. Rajat Abolkar is not happy with Akil Parab. He's not signaling him. Yes, now he gets the correct bit of word. Now he looks at him. Single taken of that no ball brings the left-handed batsman on strike. Swing missed again. Again trying to go over the top, but tall man is generating some good bounce and carry to the wicket keeper. So far 9 catches, 3 run-outs by Yogesh Pendkar and some runs with the bat as well. That's been pulled away, and that will just be stopped in. Yes, good work in tandem by both the fielders. Darpan and Jatin Kamre working in tandem to save a single. In fact, saved a couple. 2 runs taken. Score moves on to 26 for the loss of 3 wickets. This being the MCT over, Mantrim Champions Trophy over, where all the fielders are inside the 30-yard ring. Swing again, missed again. Another swing and another miss. Looking to go over the top. Trying to take advantage in this particular over. Again, excellent delivery. Shuffling across, following the batsman was Akshay Patil. Superb bit of bowling. And our big man is here, Mr. Stanley. We welcome you on behalf of MCT. Mr. Stanley. Full toss. Worked away on the onside. And that will trickle in the boundary for 4. 40 boundary. And a boundary after a long time. 4 overs done and dusted. It's 30 for the loss of 3 wickets. 4 overs done at the halfway stage. I Mauli Kudalha put into bet by the Bhavyan Sports Saish 11 Malvern. 30 for 3 after 4 overs. It will be change in voice
Thank you. It will Thank you, be- Sham. Thank you very much. Sorry for interrupting you. It's housey time again. People are waiting, guy. And second number, दूसरा number katta, alone, dolon. Lucky for somebody, unlucky for some. 3 and 1, 31. 31, 3 and 1, 31. We are playing for Jaldi 5. Next number is 4 and 5, 45, 45, 40 आणि 5. याचे फुडले नंबर आफ्टर दिस ओव्हर. सुशेगात राहा. पेशन्स. Over to Samir Pandre, sir. नाणेफेकीचा कौल जिंकला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या ही 30 धावा. 5व्या षटकाची सुरुवात होते. यावेळी ढिल्या हातानं फटका टोलविला जातोय. सरळ फटका पॉइंट क्षेत्रात उभा असलेला जुन्या जाणता खेळाडू सुनील मालवणकर याच्या हाती विसावतोय. थोड्याशा सुस्तीनं खेळला गेलेला फटका. सुनीलला झेलाचं निमंत्रण. झेल सुनील टिपतोय व 4 षटकांच्या सांगत्याखेरीज जलपानासाठी जो खेळ थांबला होता त्याची सुरुवात ही गडी टिपून होत या ठिकाणी आई माऊली क्रिकेट संघ कुडाळ याला बसतोय. तो 4था हादरा तर 4थी सफलता या ठिकाणी प्राप्त होते. ती अर्थातच मालवणच्या भाव्यांश स्पोर्ट्स साईश 11 या क्रिकेट संघासाठी. निश्चितपणे एक भव्य दिव्य अशी क्रिकेट स्पर्धा. आज या क्रिकेट स्पर्धेची 3री रजनी. 2 रजनीमध्ये आपण पाहिलं गोवा राज्याचा वरचष्मा. पहिल्या दिवशी या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा संघ ठरला तो पेरनेम स्ट्रायकर संघ. कालच्या 2ऱ्या रजनीमध्ये अबीर बाबा क्रिकेटर्स बार्देश गोवा म्हणजे दोन्ही संघ गोवा राज्याचे. आणि आजची 3री रजनी दोन्ही संघ खेळतायत ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळचा आई माऊली त्यांच्या विरुद्ध खेळताना दिसतोय तो भाव्यांश स्पोर्ट्स साईश 11 क्रिकेट संघ. म्हणजे विजय कुणाचाही हो, मात्र संमिश्र प्रतिसाद जो सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि गोवा राज्य यांच्या समन्वयानं ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. त्या आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धेमध्ये उपांत्य फेरीचं स्थान सिंधुदुर्गातील कोणता तरी संघ करेल एवढं मात्र नक्की. कुरंदाची मार्कवर पायस अल्मेडा आल्या मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. डावखुराचा फलंदाज लोकेश हा करतोय प्रयत्न, पूर्णपणे असफल ठरतायत. बाकीचे सोपस्कार यष्टीच्या मागे यष्टीरक्षक योगेश पेंडकर यांच्याद्वारे पूर्ण होत आहेत. व बाकी परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर पायस अल्मेडा हा गोलंदाज. 30 गड्यांच्या मोबदल्यात यापूर्वीच्या चेंडूची री ओढली जाते. चेंडू डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाला या ठिकाणी लेग कटर पद्धतीचा फेकला जातोय आणि चेंडूच्या लाईन मध्ये न येता केवळ पायांची कोणतीही हालचाल न करता फुटवर्क न दर्शवता पददलितेचा अभाव पूर्णपणे दिसतोय तो फलंदाज लोकेश याच्यामध्ये. याही वेळी फुलरलन पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सपशेल 3 वेळा अपयश प्राप्त होते. ते लोकेशला सलग 3 चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत व पायस अल्मेडा याच्या हाती चेंडू सुपूर्द करण्याचा निर्णय डावातील 5व्या षटकासाठी हा काही अंशिका होईना योग्य ठरतोय तो योगेश पेंडकर व त्यांच्या सहकार्याचा. 30 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा पायस यावेळी डाव्या यष्टीवर भरकटतोय तो पायस. परिणाम भोगावे लागतायत की नाही पाहायचा आहे. चेंडू टोलविला जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी प्रजेश रावलेच्या दिशेनं प्रजेश प्रयत्न करतोय सीमारेषेच्या अलगद. मात्र या प्रयत्नांची अखेर काय होते हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी पंच खातर जमा करतायत आणि कौतुक करावं लागेल प्रजेश रावलेचं की प्रयत्न करताना त्याचा तोल जातोय, त्याचा स्पर्श सीमारेषेला होतोय आणि खिलाडू वृत्तीनं तो स्वतः म्हणून हा चेंडू षटकारात परावर्तित झालाय हे सांगतोय. हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढेच खिलाडू वृत्ती दर्शवतात आणि त्यातीलच एक खिलाडी वृत्ती हे प्रजेश रावले याच्या करवी आपण पाहतोय. पायस अल्मेडा गोलंदाज. यावेळी मात्र गती परिवर्तनाचा चेंडू होता जो कमबॅक केलं जातंय. या षटकामध्ये एक मात्र षटकाराचा अपवाद वगळता एक नीरव शांतता ही कुडाळ क्रिकेट संघाच्या गोटात पसरते कारण एक गडी त्यांचा या षटकामध्ये बाद होतोय. 5 षटकांच्या थँक्यू व्हेरी मच. इज हाऊसी टाइम अगेन. पहिला नंबर काढला आम्ही 8 and 6 86.
दुसरा नंबर काढला 4 and 5 45 आणि दुसरा नंबर काढला 3 and 1 31. चौथा नंबर काढता आम्ही जो नंबर जावन असा सिंगल नंबर 5 सिंगल नंबर 5 को and पाचवो नंबर जावन असा 7 and 0 70 याचे फुडलो नंबर आता काढचे ना आम्ही. कोणाचे 3 झाले, कोणाचे 4 झाले, पटान पकापकू जाता. माशे रावा आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर द ब्रेक. थँक्यू. निश्चितपणे या ठिकाणी गोवा राज्याचं व सिंधुदुर्गाचं भवितव्य आपण मैदानावर पाहतोय. मात्र उज्ज्वल भविष्य ज्यांच्या खांदी आहे असे गोवा राज्याचे विघ्नेश नवसो कल्चरकर हा छोटा मुलगा या ठिकाणी समालोचन कक्षामधनं या सामन्याचा आनंद लुटताना आपण पाहतोय. खेळ समाप्त होतोय. 5 षटकांचा 36 धावा. धावफलकावर गोलंदाजीमध्ये बदल. गोलंदाज जतीन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू. फटका मागे ताकद नव्हती. आत्मविश्वासाचा अभाव दिसतोय आणि जो सापळा तैनात करण्यात आला होता प्रज्ञेश रावले याच्या स्वरूपात हा खेळ टिपला जातोय. बराच वेळ खेळपट्टीवर ठाम मारून बसलेला मात्र मोठे फटके ज्याच्याकडनं अपेक्षित होते त्या अपेक्षांची पूर्तता न करणारा रुपेश तांडेल अखेर स्वतःवरचा संयम ढळवतोय व त्याचे परिणाम त्याला व त्याच्या संघाला भोगावे लागतायत. बाद होऊन रुपेश मैदानाच्या बाहेर जातोय व रुपेश बाद झाल्यानंतर मैदानावर वर्णी लागते ज्याने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्या चतुरसूत्र फटकेबाजीनं क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकली आहेत. खऱ्या अर्थानं उपांत्य फेरीच्या शर्यतीमध्ये कुडाळ क्रिकेट संघाचा वरचष्मा राखण्यासाठी ज्या खेळाडूनं एक हाती खिंड लढविली आहे तो जोएल नाईक हा फलंदाज मैदानावर जातोय. तो भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजाचा सामना करण्यासाठी. आज या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं बरेच प्रेक्षकांची मांदियाळी ही लाभली आहे ज्यामध्ये सिंधुदुर्ग समालोचन संघटनेचे अध्यक्ष, देवली गावचे सुपुत्र, देवली गावचे प्रथम नागरिक, आमचे जवळचे मित्र श्याम वाकर, त्यांच्या सोबत या ठिकाणी त्यांचे सहकारी तसेच अनेक क्रिकेटचे चाहते हेही मैदानावर उपस्थित शब्दसुमनाने आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही स्वागत करीत आहोत. महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये गोलंदाज जतीन गोलंदाजी मार्कवर या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय व निश्चितपणे सामोरा जाईल जो स्ट्राईकला फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी जोएल नाईक. आखूड टप्प्याचा चेंडूचा टप्पा पाडल्यानंतर पुलचा फटका तोलवायचा होता. चेंडू जमिनीलगत जातोय. तो मिड विकेटच्या दिशेनं परत एकदा क्षेत्ररक्षक प्रज्ञेश आपल्या समोर दिसतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. एकेर धावेने जोएल स्वतःचं खातं खोलतोय व धाव फलकावर पुढे नेतोय तो 37 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावांचा अभाव, एकेरी दुहेरी धावांचा दुष्काळ निश्चितपणे या डावामध्ये दिसतोय. खास करून स्ट्राईक रोटेट करण्यात फलंदाज अपयशी ठरतायत. त्यामुळेच हा धावफलक काहीसा कुर्मगतीनं पुढे सरकताना 37 धावांवर येऊन ठेपतोय 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत जतीन स्क्वेअर ऑफ द विकेट देखणे असा फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर प्रज्ञेश रावले. प्रज्ञेशला आपण दूर ठेवू शकत नाही. फेक सरळ येते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. काय क्षेत्ररक्षण प्रज्ञेश रावले करतोय. मैदानाच्या चारही बाजूला त्याची ओढाताण होते, त्याची दमछाक होते. यावेळी चेंडू त्याने सुरेखरित्या अडविला. चेंडूची थेट फेक यष्टीरक्षक योगेश पेंडकर याच्या दिशेनं केले आणि त्यानंतर काय घडलंय काय बिघडलंय याची खातर जमा करण्यासाठी निर्णय हा तिसऱ्या पंचांच्या दालनात येऊन ठेपलाय. तिसरे पंच खातर जमा करतायत व तिसऱ्या पंचांचा निर्णय हा फलंदाजाच्या बाजूने लागतोय. म्हणजे या ठिकाणी निर्धोक आहे तो अर्थातच या ठिकाणी डावखुऱ्या हाताचा
फलंदाज. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण वाखाणण्याजोगं झालं होतं. तत्परतेनं फेक यष्टिरक्षक योगेश पेंडकरच्या दिशेनं केली होती. योगेश पेंडकरनेही बाकीचे सोपस्कार पूर्ण केले होते. मात्र ज्यावेळी सोपस्कार पूर्ण झाले त्याच्या काही क्षणापूर्वी आपल्या सुरक्षित घरात डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज येऊन पोहोचतोय. तो लोकेश चव्हाण संभाव्य धावचीच्या धोक्यापासून तो वाचतोय व 2 धावा त्याला व त्याच्या संघासाठी मिळतायत. चेंडूचा अक्षरशः पाठलाग केला जातोय. वाईल्ड लाईन वरील चेंडू. यावेळी विचार मंथन करतायत. स्वतःच्या मनाशी पंच खुणगाण बांधतायत व अखेर हा चेंडू अवैध असल्याचा निर्वाळा अनुभवी असे पंच राजेंद्र दाभोलकर यांच्या माध्यमातून येतोय. आणखी एक अवांतर धाव ज्या एकेरी अवांतर धावेने 40 गाठली जाते. ती आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाची 40 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडूवर स्क्वेअर कटचा फटका. या ठिकाणी फेक होते ती पॉइंट क्षेत्रावरनं अक्षय कर्वे. अक्षय पाटील चेंडू अडवतोय. चेंडूची फेक करण्याचा पवित्रा घेतोय. दोन्ही खेळाडूंमध्ये समन्वयाचा अभाव निश्चितपणे दिसत होता. संकटामध्ये जोएल नाईक हा होता. मात्र फेक ही सुमार दर्जाची आणि हीच सुमार दर्जाची फेक अक्षय पाटील याने केलेली जीवनदायी ठरते. ती जोएल नाईकला एकेरी धाव तो पूर्ण करतोय. आपल्या साथीदाराच्या सहकार्यानं व सांघिक धावफलक 41 धावांवर विस्तारित करतोय. जतीन सज्ज यावेळी फटका सजविण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडूने फलंदाजाच्या आसरा घेतला. यष्टिरक्षक योगेश पेंडकर याच्या हाती या संपूर्ण स्पर्धेतील 10व्या झेलासाठी गेला आणि एकदा का योगेश पेंडकर चेंडूच्या खाली आले त्यावेळी फलंदाजांनी खुणबाण बांधली की ही धोक्याची घंटा निनादते. सोपस्कार पूर्ण होत आहेत. जतीनला या षटकातील मिळते ते दुसरं यश. सांघिक 6वं यश हे मालवणच्या भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 क्रिकेट संघाला व 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 41 धावा. इट्स हाऊसी टाइम अगेन. पहिला नंबर 86, दुसरा नंबर 31, तिसरा नंबर 45, चौथा नंबर 5, पाचवा नंबर 7 and 0 70 आणि आता आम्ही काढता 6 नंबर 6 नंबर जाऊन असा 1 and 19. 1 and 9, 19. 19. मत्सू स्पीडीन येता स्पीडीन फास्ट डाऊन आणि हो 100 मीटर रनिंग केले जिंकलेला असा खंयचो लास्ट नंबर 19. नवीन फलंदाज सोनू कानडे याची वर्णी ही मैदानावर लागते. 6 षटकांचा खेळ या ठिकाणी प्रगतीपथावर 6व्या षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज जतीन हा सज्ज होतोय. समोर आहे सोनू. पुढे सरसावतोय पददल त्याच्या जोरावर विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका सजविला जातोय. चेंडूच्या खाली येतोय तो दर्पण आचरेकर. चेंडू रिले करतोय. चेंडू रिले करताना साहजिकच दर्शन बांदेकर ह्याचं चेंडूवर लक्ष नव्हतं. विशेष काही नुकसान होत नाही. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एकेरी धावेने खेळ समाप्त होतोय. अर्थातच तो 6 षटकांचा आणि 6 षटकांच्या सांगतेकरीस प्रति षटकामागे 7 धावांच्या धावगतीनं 42 धावा या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आपण अनुभवतोय. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आई माऊली कुडाळ संघाकडनं आणि कोणाची असा आवजी झाली असा सध्या आमका एक मेवला असा आमच्या मोहनम असं गडबड झाली 45च्या जाग्यार 42 तरी नंबर धरलो अर्धे पैसे मेळटले. आणि कोण असा एक हावजी राईड असा ऑलरेडी सॉरी एक हावजी झाली असा दुसरी हावजी रॉंग असली. एक मिनिट राव
डावातील 7वं षटक गोलंदाजी मार्कवर दर्शन बांदेकर. पहिला चेंडू देखण्या असा फटका, चेंडूचा प्रवास होतोय तो डिपेक्सच्या कव्हरला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. पहिल्या प्रयत्नात निश्चितपणे असमर्थता, मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात स्वतःला क्षेत्ररक्षक सचिन सावरतोय. जो चेंडू निस्तू पाहत होता त्या चेंडूवर त्याची पकड मजबूत होते. दुसऱ्या धावेपासून फलंदाजला वंचित ठेवलं जाते व नाममात्र एकेरी धावेवर या ठिकाणी समाधान हे मानावं लागतंय. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 43 धावांवर. बऱ्याच वेळेच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर डावखुऱ्याचा लोकेश चव्हाण हा स्ट्राईकला येतोय. लोकेशला आपला खेळ साकारावा लागेल. लोकेश चव्हाणला आपला खेळ दर्शवावा लागेल. गाझियाबाद सारख्या दूरवरच्या ठिकाणावरनं कुडाळच्या संघामध्ये का माझी वर्णी लागली या प्रश्नाचं उत्तर हे द्यावं लागेल लोकेश चव्हाणला. दर्शन बांदेकर सज्ज. फटका निघतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. देखण्या कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं जे आवाहन लोकेश चव्हाणला केलं होतं बहुधा ते आवाहन त्याच्या कानी पडतोय. त्याला काहीतरी स्फूर्ती मिळते, त्याला काहीतरी चेतना मिळते आणि त्याच चेतनेतनं स्वतःला सिद्ध करणारा एक दर्जेदार असा फटका हा पॉइंट क्षेत्रात चौकारासाठी निघतोय तो लोकेश चव्हाण याच्या माध्यमातून. सांघिक धावफलक या ठिकाणी 47 धावांवर. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू जीव घेण्यात ठरू शकतोय की नाही पाहायचंय. प्रजेश रावले बहुधा या ठिकाणी चेंडूचा अंदाज घेण्यास जगतोय. चेंडू अडून चेंडूची फेक. फायटर जेट म्हणून ज्याला संबोधलं जातं त्या योगेश पेंडकरच्या हाती येते. एकेर धाव निघते. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 48 धावांवर. डावातील 7वं षटक प्रगतीपथावर. खिंडार पाडलं होतं ते दर्शन बांदेकरने. आपल्या बिनीच्या षटकाची सुरुवात सफलतेनं केली होती. पहिल्या षटकाची सांगताही सफलतेनं केली होती तो दर्शन बांदेकर. यावेळी मात्र दिशेमध्ये भरकटतोय. उजव्याशीच्या बराच बाहेर तो चेंडू फेकतोय. परिणामता अनुभवी असे पंच या ठिकाणी सिद्धेश हरमलकर यांचा इशारा येतोय तो वाईडचा. एक अवांतर धाव. ज्या एकेरी अवांतर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 49 धावांवर. दर्शन गोलंदाजीवर. जोवर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका मारायचा होता मात्र मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता लॉंग ऑनच्या दिशेनं केवळ चेंडूला दिशा दिली जाते. एकेर धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेर धावेने सांघिक अर्धशतक आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघाचं धावफलकावर. आपण पाहतोय 50 धावा या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. फटका सुरेखरित्या निघतोय कव्हरच्या डोक्यावरनं. एका अप्रतिम षटकारासाठी लोकेश चव्हाण स्वतःला सिद्ध करतोय. स्वतःबरोबर आपला संघ मजबूत अवस्थेत कसा जाईल याकडे तो लक्ष केंद्रित करतोय व एक हाती खिंड लढवत निश्चितपणे समोरच्या प्रतिस्पर्धी उभ्या ठाकलेल्या मालवण संघासमोर तो संकटाचे ढग हे निर्माण करतोय. षटकारानं धावफलक बदलतोय 56 धावांवर. 56 धावा 6 कड्यांच्या मोबदल्यात. दर्शन काहीसा महागडा या षटकात ठरतोय. तब्बल 13 धावा खर्च होत आहेत. याही वेळी डाव्यायष्टीच्या परायास बाहेर जाणारा चेंडू. अनुभवी पंच सिद्धेश हरमलकर विचार मंथन करतायत. विचार मंथन केल्यावर दोन्ही हात त्यांचे समांतर होत आहेत आणि हेच त्यांचे समांतर झालेले हात कुडाळ क्रिकेट संघाच्या खाती एकेरी धाव मिळाली याची स्पष्टोक्ती व्यक्त करताना कुडाळ संघ या ठिकाणी पोहोचतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 57 धावांवर. 57 धावा 6 गडी बाद. दर्शन सज्ज. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा चेंडू केवळ दिशा दिली जाते. चेंडूला पाठवलं जाते ते फाईन लेग क्षेत्रात. दर्शनची महागडी अशी गोलंदाजी. दर्शनच्या गोलंदाजीवर प्रतिहल्ला लोकेश चव्हाण कडनं षटकाच्या सुरुवातीला जे आव्हान दिलं होतं त्या आव्हानाला या ठिकाणी सकारात्मक दृष्टिकोनातनं खेळताना लोकेश आक्रमक फटकेबाजी करतोय. थँक्यू समीर. आणि आयची हावजी जो जिंकलेला असा हावजी ऍक्च्युली त्याची फास्ट जावना पूण रनिंग फास्ट जाली. 100 मीटर त्यांनी 6.25 सेकंदान सोंपयली. असो आमचो तेजस परब फ्रॉम कोलवाळे बार्देस. वेल डन तेजस, वेल डन. हे जे 5,000 रुपयाचे बक्षीस हांव रिक्वेस्ट करता महेश कोनाटकर आमचो प्रेसिडेंट तेणे काय 5,000चे बंडल दिवपाचे तेजसाक. गौरव मासो कॅमेरा. तेजस आणि तेजसाक म्हणजे एकदा ताळयो मार. त्याचा लग असलो आहे पण बाकीच्या लागवना त्यांच्यानी नर्वस जावपाचे ना. फायनली आमचे ग्रँड प्राइज आसा 33,333 रुपया. सो हावजी
आम्ही फायनली मेने घेतले. नॉट टू वरी. थँक्यू व्हेरी मच. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज फिकी सज्ज होतोय. डावाची शेवट करणारा षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज फिकी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. समोर आहे फलंदाज तो सोनू. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न हा निश्चितपणे फसतोय. दुसऱ्या बाजूनं एकेरी धावेने स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा बेत हा यशस्वी ठरतोय लोकेश चव्हाणचा. व आणखी एक खतरा कुडाळ संघाला हा निश्चितपणे बसतोय. योगेश पेंडकर यशचे मागे काय बहारदार कामगिरी करतोय पहा. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये तो तिसरा सामना खेळतोय. 10 झेल त्याने आतापर्यंत टिपलेत आणि त्या 10 झेलांवर समाधान न मानता प्रतिस्पर्ध्याच्या संघाच्या 4 फलंदाजांना धावचीच्या स्वरूपात मागे पाठवण्याची किमया योगेश पेंडकरने साध्य केली आहे. का महाराष्ट्राचा सर्वोत्तम कर्णधार म्हणून योगेश पेंडकर याच्याकडे पाहिलं जातंय याचं उदाहरण तो आपल्या खेळीनं सादर करतोय व क्रिकेट वेगळ्या क्रिकेट रसिकांची मनं तो जिंकतोय. डावखुराचा लोकेश चव्हाण हा स्ट्राईकला गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विकी सज्ज होतोय. आता मात्र धावफलक काहीसा ठीकठाक दिसतोय. धावफलक हा कुडाळ क्रिकेट संघाच्या आत्मविश्वासाला दृढगतीनं वाढविणारा दिसतोय. मात्र दुसऱ्या बाजूनं योगेश पेंडकर आपल्या सहकार्याला सांगतोय की तू टिच्चून गोलंदाजी कर व लोकेश चव्हाणच्या वादळाला तू संपुष्टात आण. ओव्हरपीट पदाचा चेंडू फटका सजविला जातोय. इरादा होता झेल टिपण्याचा प्रथमता. त्यानंतर विशाल या ठिकाणी झेल सोडण्याची मनीषा सोडतोय. चेंडू अडविण्यात धन्यता मानतोय. मी तर म्हणेन या रजनीमध्ये त्याचा योग्य असा निर्णय. कारण झेल टिपण्याच्या नादात जर तोल गेला असता तर चेंडू सीमारेषेपलीकडे जात 4 धावा मिळाल्या असत्या. मात्र योग्य अशी समय सूचकता दाखवतोय तो क्षेत्ररक्षक. यावेळी चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. मोठा फटका टोलवायचा होता तो लोकेशला. स्वतःवर नाराज दिसतोय. एकेरी धाव ही सहज साध्य होऊ शकली असती. मात्र स्ट्राईक स्वतःकडे राखायची. जास्तीत जास्त मोठे फटके मारायचे. जो धावफलक 60च्या घरात आहे त्याला 70कडे झुकवायचं असा इरादा दिसतोय लोकेशचा. आणि हा इरादा का तर स्वतःच्या क्षमतेवर त्याचा दृढ आत्मविश्वास आहे आणि त्या आत्मविश्वासाच्या शिदोरीवर तो लढतोय विकीच्या गोलंदाजीला. ओव्हरपीच पदाचा चेंडू फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. यावेळी मात्र चेंडू हवेत गेल्याने एकेरी धाव पूर्णत्वास ही नेली जाते. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय. धावफलक स्थिरावतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी 62 धावांवर. 62 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी टिचून होते विक्की रोगे याच्याकडनं. पहिला षटकामध्ये आपल्या वैयक्तिक पहिल्या षटकामध्ये समोर लोकेश नावाचा धुरंधर खेळाडू असतानाही तो टिचून मारा करतोय व अक्षरशः मोठ्या फटक्यांसाठी तो झुंजवतोय. गोलंदाज फिकी सज्ज. सुरेख असा फटका गोलंदाच्या डोक्यावरने टोलवला जातोय. दर्शन बांदेकरच्या उंचीलाही या ठिकाणी आव्हान देणारा असा फटका. दर्शनचे प्रयत्न अपुरे ठरविणारा असा फटका सरळ येतोय डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं चौकारासाठी. यावेळी फलंदाज हा लोकेश नसून फलंदाज आहे तो अर्थातच सोनू. मात्र उज्जैर मुजावर मात्र संघहिताची गरज ओळखून त्याच्या माध्यमातून निघतोय तो चौकारासाठी फटका. 66 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रधाविकी गोलंदाजी मार्कवर उजव्या यष्टीच्या बाहेर बराच चेंडू जातोय. वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. आणखी एक अवांतर धाव. वाईडची घोषणा पंचांकडनं झाली. त्या पंचांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका या ठिकाणी यष्टीरक्षक योगेश पेंडकर यांच्या माध्यमातून आणि म्हणूनच निर्णय हा तिसऱ्या पंचांच्या दालनात येऊन ठेपलाय. तिसऱ्या पंचांच्या दालनात म्हणजे ज्याला हायकोर्ट म्हटलं जातं त्या हायकोर्टमध्ये हा चेंडू संभाव्य वाईड आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी गेलाय. तिसरे पंच खातरजमा करतायत. मैदानी पंचांचा निर्णय योग्य आहे यावर एकमत होतंय. वाईडचा इशारा येतोय व या वाईडच्या इशारामुळे एकेरी धाव कुडाळ क्रिकेट संघाच्या खाती सहजगत्या जमा होते. 67 धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात.
7 षटक 5 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 67 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. संभाव्य 70 कुडाळ संघ गाठेल का की 67 धावांपर्यंत त्यांना समाधान मानावं लागेल का? विकी गोलंदाज, चेंडू हवेमध्ये उडतोय परत एकदा. या संपूर्ण स्पर्धेतील 11वा झेल खुशीने स्वीकारतोय तो योगेश पेंडकर. निर्धारित 8 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. सुरुवातीच्या पडझडीनंतर मात्र या मैदानावर आजच्या रजनीमध्ये लोकेश चव्हाण नावाचं वादळ हे कुडाळ क्रिकेट संघासाठी काही अंशी का होईना घोंगावतंय. आक्रमक फटकेबाजी करतंय. आपल्या संघाला एक मजबूत नाही मात्र सन्मानजनक धावफलक मिळविण्यासाठी तो प्रयत्नवादी ठरतोय आणि हे त्याचे प्रयत्न त्याच्या संघाला उपांत्य फेरीचे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी मदतगार ठरतायत. की दुसऱ्या बाजूनं दर्शन बांदेकरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 ज्या संघामध्ये योगेश पेंडकरचा तगडा असा अनुभव, त्याला साथ मिळते अक्षयची. जुन्या जाणता खेळाडू सुनील मालवणकर, सळसळचे रक्त हे प्रज्ञेश रावले, त्यानंतर दर्पण आचरेकर, सचिन आचरेकर सारखे खेळाडू उपस्थित. हे सर्व खेळाडू जी संधी आली आहे चालून त्या संधीचं सोन्यात रूपांतर करत भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 या ठिकाणी मालवणचा झेंडा उपांत्य फेरीत रोवण्यासाठी यशस्वी ठरतायत की नाही ही येणारे 8 षटकं सांगतील. मात्र या मध्यंतरच्या कालावधीमध्ये काय घडेल, काय बिघडेल, जादूमय कामगिरी या मैदानावर कोण साकारेल आणि कोणता संघ आजच्या रजनीमध्ये उपांत्य फेरीमध्ये दिमाखातरित्या प्रवेश करेल हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय. आमचे सहकारी, आमचे जवळचे मित्र प्रशांतजी आदवडेकर सर यांना मी विनंती करतोय की आपण समालोचन कक्षामध्ये यावं. त्यांच्या समवेत नाना परब यांनाही मी विनंती करतोय आपण आपल्या ओघावत्या शैलीमध्ये या सामन्याचा शेवट काय होईल, कोणता संघ उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करेल याची निश्चिती आपण करावी. आणि या एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आजच्या 3ऱ्या रजनीपर्यंत आपण जी मला बहुमूल्य साथ दिली, आपलं सहकार्य मिळालं, जी संधी मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्तानं आमचे मित्र महेशजी कोनारकर, संजयजी नागवेकर, अंबाजी कोनारकर या त्रयींनी आणि त्यांच्या मित्रवर्गाने दिली त्या संधीबद्दल त्या सर्वांचे आभार मानतोय. आणि या 3ऱ्या रजनीमध्ये तुम्हा सर्वांची रजा घेतोय. उद्या 4थ्या रजनीमध्ये आपली भेट होईल या अभिवचनानं धन्यवाद. हॅलो. योगेश. धन्यवाद सर. सुंदर मराठीचा आवाज आपण ऐकला समीर सरांच्या माध्यमातून. सुंदर मराठीचा आवाज. मांद्रेम बॉयज आयोजित मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 स्पर्धेचा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसातील शेवटची लढत आपण मित्रांनो बघतोय. आणि शेवटच्या लढतीत सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली. ती भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण क्रिकेट संघ आणि त्याला चांगला प्रतिकारही केला समोरच्या संघानं. अर्थातच आई माऊली कुडाळ क्रिकेट संघ 67 धावा जमवतोय. 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 68 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाला. बैटिंग कार्ड आपके बस स्क्रीन पर हैं. जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है लोकेश चौहान ने प्रभावित किया. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. और आखिर का जो समय था खास करके वह निर्णय का ओवर था जिसमें थोड़ा और बेहतर बल्लेबाजी वो कर सकते थे. प्रयास जारी रहा लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विकी द्वारा रही है. पहले ओवर में अक्षय ने 15 रन देते, 1 विकेट. थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई थी, इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए. उसके बाद में दर्शन के ऊपर इतना विश्वास जताया था तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की. लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन. दूसरे ओवर में दर्शन द्वारा 3 रन. उसके बाद में एक बार फिर जो 3रा ओवर था 5 रन. अक्षय के 4थे ओवर की जो कहानी थी उसमें 6 रन. यहाँ रन नहीं बने लेकिन दर्शन का 1 ओवर जिसमें 19 रन आए थे 7वें ओवर में मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ चला गया. आखिरी ओवर में 6 रन. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है. तो बल्लेबाजों के बारे में एक बार फिर हम आपको बताएंगे. लोकेश चौहान ने इस मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी जरूर की है. सोहेल शेख का योगदान भी बहुत बढ़िया रहा. 12 रन बनाए. रुपेश 8 रन. और इंपॉर्टेंट पारी खास करके लोकेश चौहान के 25 रनों की जो पारी है ना बहुत इंपॉर्टेंट. और इनके 25 रनों के पारी के कारण और सोहेल शेख के 12 रन वो बहुत महत्वपूर्ण थे. बाकी वह बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं है.
टोटल रन संख्या 67, 8 विकेट के नुकसान पर, और जीतने के लिए 68 रनों का लक्ष्य रखा गया। 68 प्राप्त है, लेकिन क्या पर्याप्त है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल सही सर, 68 रन का जवाब में बल्लेबाजी के लिए मौका है। तो ओपनिंग जोड़ी, प्रारंभिक जोड़ी भी मैदान पर धीरे धीरे चल रही है। दोनों के पास खासतौर से जिस खिलाड़ी की हम चर्चा करें इस टूर्नामेंट की दूसरा अर्धशतक जिसने बताया, यहाँ पर 56 रन की यादगार पारी के लिए ओ मिस्टर सर योगेश पेंडकर धीरे धीरे मैदान पर, और उन्हीं के साथ बल्लेबाजी करते हुए जहां पर जा रहे प्रजेश रावले वन मैन आर्मी, जहां से इस मैदान पर देखा जाए तो चारों तरफ वो बेहतरीन एफर्ट लगाकर फील्डिंग का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल से हमेशा कहाँ भी मैदान हो, किसी कैसा भी मुकाबला हो, हमेशा खुद का 100% योगदान देते क्रिकेट में। ओ प्रजेश रावले यहाँ पर देख रहे। नाना ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए है, और अगर आज जीतते हैं तो ग्रैंड फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। तो तीसरी ऐसी कौन सी टीम है जो आज क्वालिफाई करेगी? बाबेंश स्पोर्ट साइरस मालवन या आई मौली कुडाल? सेमीफाइनल का सफर आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने के लिए दर्शक आए तो आखिरी मैच थोड़ा बेहतर होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, तब जाकर दर्शकों को भी मजा आएगा। बिल्कुल सही, मुकाबला कड़क तो होगा जरूर। दोनों की बात की जो तो एक बार अच्छी गेंदबाजी है आई मौलिक कुडाल क्रिकेट टीम की। शुरुआत का ओवर जो यहाँ पर लोकेश मीनार का दिखाई देते हुआ, बहुत ही अनुभव है लोकेश मीनार। ऑफिशियल्स का जरूर इशारा बन रहा है मैच शुरू होने का। तो स्ट्राइक से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मिस्टर योगेश पेंडकर। नाना योगेश के ऊपर निगाह रहेगी। आज इनका दिन बहुत ही बेहतरीन रहा है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बैटर इंटरेस्टिंग है। लोकेश गेंदबाजी करने के लिए, लोकेश मीना और सामने योगेश पेंडकर। पहली गेंद यहाँ पर स्विप किया, यहाँ पर बेहतरीन स्विप किया, यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। अब तक गेंद को उठाते थ्रो करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ व्यक्तिगत खुद का खाता खोला योगेश पेंडकर ने। ना काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और इस गेंद को स्विप किया, मन बना के ये शॉट खेला गया बल्लेबाज योगेश पेंडकर द्वारा। अब जाकर योगेश पेंडकर का खाता खुलता हुआ। योगेश शर्मा स्कोर 1 पर नन। 68 रन की जॉब में शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर अपने व्यक्तिगत खुद का खाता खोला। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। यहाँ पर प्रजेश रावले एक आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है, चारों तरफ आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनके ऊपर काफी दारोमदार है। मैच में बहुत सा अनुभव है टेनिस क्रिकेट में। प्रजेश रावले के साथ इस मैदान पर बेहतरीन प्रभावित किया, सभी दर्शकों का मन जीत लिया इस खिलाड़ी ने। गेंदबाज जहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार लोकेश मीनार। नाना फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे, जो गली का खिलाड़ी उसको पॉइंट क्षेत्र में लेके गए। कवर पर एक खिलाड़ी है, थोड़ा और इस कवर क्षेत्र की तरफ चले गए। मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली बल्लेबाज प्रजेश के लिए। उसके लिए पॉइंट रखा है रुपेश तांडेल के लिए। रुपेश तांडेल बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी, घूमकर मारे, सफल होकर खेलने की कोशिश, को इससे अलग करने की कोशिश। लेकिन देखिए यहाँ पर लोकेश मीनार की भी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए सर, क्या गेंदबाजी की यहाँ पर। जी हाँ, सेटअप किया था। बिल्कुल सही आपको बात, सेटअप किया गया पर। और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, बल्लेबाज भी ऑफ स्टंप के बाहर ही आए थे, फॉलो बहुत अच्छा किया और ऑफ साइड पर स्ट्रांग फील्डिंग लगाई है। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी लोकेश मीना द्वारा। जहां पर गेंदबाजी इसी अंदाज से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। फील्डिंग की बात की जाए तो ये देखिए बेहतरीन बल्लेबाज के लिए मौका नहीं, जड़ों में डाली हुई गेंद को बल्लेबाज को फंसा है यहाँ पर। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। जिस तरह से बल्लेबाज ना आगे खेले ना पीछे खेले, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और ऐसा आलम भर गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। सटीक वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं था। शानदार गेंदबाजी लोकेश मीना द्वारा। बेहतरीन स्पेल की यहाँ पर शुरुआत कर रहे लोकेश मीना। ये देखिए बल्ले का कोच के निकले, शॉट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है पर, तो सीधा थ्रो बनता, मेरे ख्याल से हिट लगता तो खतरे की घंटी बज सकती थी। सोनू कानड़े बेहतरीन फील्डर है, मानगांव के रहने वाले खिलाड़ी, एक बेहतरीन क्रिकेटर यहाँ पर। ना फील्डिंग बहुत ही बढ़िया रही है। थ्रो अगर लगता तो बिल्कुल ये गेंद बल्लेबाज के दिल को लगती, स्टंप को नहीं लगती, दिल को लगती, क्योंकि एक तरफ आपने पहला रन लिया, सिंगल लिया, आप दूसरे एंड की तरफ जा रहे थे, तब जाकर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग दायरे के अंदर। इंटरेस्टिंग मुकाबला, टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन बैटल मैदान के अंदर कमाल का चल रहा है। स्ट्राइक पर योगेश पेंडकर।
शॉट गेंद हल्के से पर स्क्वायर कट किया, बेहतरीन नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एमसीटी चौका 4 रन के लिए। दमदार दमदार बल्लेबाजी, सोचो मत, शुरुआत करो, जो भीतर बल्ले वाले उगलून बॉल दिया हमारे भीतर बल्ले थे, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। Thank you. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और थोड़ा सा रूम मिला, बल्लेबाज ने देख लिया, भाप लिया, अपने आप के लिए वो जगह बनाई, शॉट के लिए जगह बनाई और पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया था। शानदार स्ट्रोक, टकाटक, पटापट, कमाल का अपर कट योगेश्वर पेंटकर के बल्ले से। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद यहाँ पर अंकुश बाम्बार्डेकर, शॉर्ट स्कोर लेग में खिलाड़ी है लेकिन ऑफिशियल्स का इशारा नो बॉल का। अंकुश बाम्बार्डेकर ने तेजी की रफ्तार से चपट्टा मार के गेंद को रोका, लेकिन ऑफिशियल्स का इशारा नो बॉल का। इस गेंद के ऊपर फ्री हिट का एक सुनहरा मौका, यहाँ पर रियर है यहाँ पर नाना खास करके मैं देख रहा योगेश पेंटकर की रिएक्शन, ये फुल टॉस गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ है और एक बहुत बड़ा मौका था, जब स्क्वायरली की तरफ गेंद फीड हुई ना तब जाकर वो योगेश पेंटकर की रिएक्शन देखने वाली थी, जिस तरह से वो निराश थे। मौका था, खुशी आई थी, लेकिन भाई आपने फायदा नहीं उठाया। थँक्यू प्रशांत. जोपर्यंत अंपायर डिसिजन द्या तोपर्यंत आमचो एक बरो व्हॉलंटियर बाळा सावंत हांगा पावलो आसा, जो आमी रातचे 3 घरा वयता, आमी लेट येता 11:30 12 पूण तो सकाळी 8:30 येवन फुल ग्राउंड क्लियर करता, लायनी मारता, असो बाळा सावंत पावलो आसा. आमी थँक्यू म्हणटा बाळा सावंताक की असोच आमच्या फाटल्यान तूं रोजो सपोर्ट करून. थँक्यू बाळा. थैंक यू संजय सर. नो बॉल का इशारा ऑफिशियल्स का आता हुआ जो तीसरे अंपायर के लिए मांग करी थी, लेकिन नो बॉल का इशारा. तो इस गेंद के ऊपर फ्री हिट का मौका मिलेगा इस बल्लेबाज योगेश पेंटकर के लिए. योगेश पेंटकर की सभी की निगाहें उनके ऊपर. एक आक्रामक बल्लेबाज पूरी तरह से जान लाकर बल्लेबाजी करते हैं. ये देखिए तगड़ा प्रहार यहाँ पर एक्स्ट्रा कर बाउंड्री की तरफ लगभग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर गेंद तो बेहतरीन रोका है, यहाँ पर लग रहा था करीब से बेहतरीन यहाँ पर गेंद को रोका. जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक रन पूरे के दोनों बल्लेबाज थे. नाना यहाँ कमाल का स्ट्रोक खेला गया था. इस टक्कर क्षेत्र में श्रीकांत भी मैदान पर है और श्रीकांत ने पूरे दिन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, शानदार फील्डिंग की है और दर्शक इसीलिए उनके लिए वो तालियां बजा रहे. पहले ओवर का खेल और स्कोर है कुल मिलाकर 8 रन बगैर किसी नुकसान के. लक्ष्य की बात करें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए टारगेट आपके सामने है 68 रनों का. 9 रन स्कोरबोर्ड पर है, स्कोरबोर्ड पर 9 रन है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट शो में नाउ स्कोर 9 रन. थैंक यू सर. और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पर. अपनी जोड़ी आप देख रहे हैं, दोनों बल्लेबाज प्रजेश रावले, उन्हीं के साथ सर मिस्टर योगेश पेंटकर. योगेश पेंटकर की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी, 7 रन बन चुके. 4 गेंदों का खेल यहाँ पर किया है, 7 रन अपनी टीम के लिए. और प्रजेश रावले 1 रन बनाकर खेल रहे. अब गेंदबाजी में परिवर्तन सर. जिस खिलाड़ी की हर बार चर्चा रहती है, सिंधुदुर्ग स्तर में हो, गोवा राज्य में, तो वो गेंदबाज सोहेल शेख बॉलिंग मार पर. कल इमरान ने प्रभावित किया था, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था बतौर गेंदबाज और बल्लेबाज. और एक ऐसे खिलाड़ी हमेशा सुर्खियों में रहेंगे, सोहेल शेख. सोहेल शेख चले बॉलिंग मार पर. ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेग सब के यहाँ पर घूमकर मारा है. यहाँ पर मिड विकेट में खिलाड़ी बेहतरीन. उज्जैन यहाँ पर देखे, उज्जैन मुजावर क्या कैच को क्या दर्प किया. यहाँ पर आखिरी मौके के ऊपर गेंद की यहाँ पर निगाह थी, वो जमा रखी. और विकेट नंबर पहला बैक टू द पहलियाना प्रजेश रावले. पहले आपने प्रजेश को बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए देखा, लेकिन अब उजेर है, उजेर ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की बाउंड्री लाइन पर. और अब प्रजेश को बैक टू द पेबल जाना पड़ेगा. उसके बाद में ताली आई थी, दर्शकों की ताली आई थी. सिंधुदुर्ग और गोवा के जो दर्शक है ना, बिल्कुल सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं. चाहे आइकॉन खिलाड़ी हो, चाहे गोवा के खिलाड़ी हो, चाहे सिंधुदुर्ग के खिलाड़ी हो. जब बेहतरीन खेल हुआ है, टॉप क्लास खेल रहा है, तब जाकर आपने तालियां बजाई है. नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं होता, हमारा शहर लंदन से भी कम नहीं होता. जहां बरस रही है आप सभी की जोरदार तालियां, ये हमारे लिए अमरूद से भी कम नहीं होता. आपकी जो तालियां है ना, यहाँ खिलाड़ियों के लिए हौसला बुलंद कर रही है. और मैं दर्शकों को सैल्यूट करना चाहूंगा, जिस तरह से पिछले 3 दिनों में आपने सपोर्ट किया है ना, वो भी कमाल का है. बिल्कुल सही आपकी बात है सर. सभी दर्शक जहां पर बनते हैं ना, तो मजा आता है क्रिकेट के लिए. तो नए बल्लेबाज दर्पण आचरेकर
दर्पण आचरेकर सामने वाली यहाँ पर अंपायर से गार्ड लेते हुए, और सोहेल शेख की चर्चा कर रहे थे। सोहेल ने अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिया है, ब्रेक आयन मौके के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलाया। खासतौर से नौशा के ऊपर योगेश पेंटर सर है, उन्हीं के साथ देना होगा। जहां पर नए बल्लेबाज दर्पण आचरेकर के लिए छोटा सा रनअप है 8-10 कदमों का, और सोहेल शेख का बॉलिंग मार्क पर बैकफुट पर जाकर यहाँ पर ढीला से गेंद को खेला, सीधे बल्ले से थोड़ी सी मिसफील्ड, लगभग कैरिबियन स्टाइल में गेंद को रोकने की कोशिश लोकेश मीना की, लेकिन देखना यह होगा गेंद सीमा रेखा तक पहुंची या नहीं। योगेश सर लोकेश मीना को पूछ रहे हैं कि भाई ये चौका होना चाहिए। अंपायर ने सही किया, अंपायर ने कहा कि भाई चलिए टीवी अंपायर की तरफ। फील्डिंग तो बहुत बढ़िया रही है। अब लोकेश मीना कह रहे हैं योगेश भाई ये 4 रन होने चाहिए, अंपायर ने भी कहा ये 4 रन होने चाहिए। चौका निकला इस गेंद के ऊपर। लोकेश मीना ने बेहद लंबा सफर तय किया था, लेकिन यहाँ पर कोशिश तो कोशिश ही रहती है। यहाँ पर काफी अनुभव के साथ यहाँ पर फील्डिंग, फिर से एक बार सोहेल शेख, ये देखिए और भी डिलीवरी एडिश काउ कॉर्नर रीजन में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एमसीटी सिक्सर 6 रन के लिए। दर्पण कमाल का प्रदर्शन मैदान के अंदर बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन इनके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार 2 मैच में आपने इनको देखा सिक्सर जड़ते हुए, उसके बाद में इस मैच में इन्होंने वो शानदार चौका जड़ा था। तो वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो गेंदबाज को नहीं देख रहे, गेंद को देख रहे, बेहतरीन बल्लेबाजी। वो सर डगआउट से ही सेट करके आए, डगआउट से यहाँ पर सेट होके आए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखा तो गेंद उनके लिए फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर गेंद का जब यहाँ पर टकराती है ना, तो गेंद सीमा रेखा तक पहुंचती है। हल्के से गेंद को कट किया यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर की जगह में, जब तक गेंद को फील्ड करते। और ये क्या कर रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे, क्या कहीं पता ही नहीं चला। यहाँ पर उजैर मुजावर थे यहाँ पर फील्डर, लेकिन इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे किए, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 68 रन का टारगेट है। एक बड़ा मुकाबला दोनों टीम के लिए, महत्वपूर्ण मुकाबला। स्ट्राइक पर बल्लेबाज दर्पण आचरेकर, हल्के खिला शॉट मिड ऑन में खिलाड़ी 30-8 सर्कल की गेंद का यहाँ पर फील्ड किया लोकेश चौहान ने, तब तक यहाँ पर रन लेने की संभावना को समाप्त किया। डॉट गेंद निकलते हुए सोहेल शेख का एक बेहतरीन स्पेल, यहाँ पर इसी स्पेल की चर्चा करेंगे तो एक चौका जरूर निकला है। तेज करने की कोशिश, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, सही फैसला ऑफिशियल्स का, और सही फैसले के साथ एक और रन खाते भी जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ना फिलहाल इस वक्त लेबरिक करना चाहते थे, टिप्पा काफी लेग स्टंप के बाहर था, दिशान गेंदबाज द्वारा। फिर से बार गेंद को खिलाया पॉइंट लॉन्गा में गया लोकेश मीना, जब तक इनको उठाते थ्रो करते, दूसरा रन भी पूरा किया। पर देखते ही रह गए, लोकेश मीना थोड़े से ढीले लग रहे, तो उसने अंदाज किया था इस गेंद के ऊपर 2 रन आने चाहिए, तो अपने लिए बेहतर होना। 2 रन की मदद से स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ 24 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। प्रति ओवर 12 रन से हिसाब से रन बन रहे, 68 रन का टारगेट है सर, 24 रन 1 विकेट, ये हालात है यहाँ पर भव्य स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण क्रिकेट टीम। दोनों पर प्रारंभिक बल्लेबाज जो है खास करके योगेश पेंटकर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट करके दिया। एक तरफ ब्रजेश का विकेट गिरने के बाद दर्पण आए हैं, दर्शन तो नहीं हुए, वो डगआउट में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दर्पण की भी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर। इससे क्या होगा, योगेश पेंटकर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा इस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे तो, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी है ना, तो सबकी निगाह उनके ऊपर होती है, जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है। लेकिन दर्पण बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्टार्ट अच्छा करके दिया। 1 विकेट आपने खो दिया और स्कोर है कुल मिलाकर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लोकेश चौहान फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, खुद का पहला और टीम की ओर से महत्वपूर्ण तीसरा ओवर लेके लोकेश चौहान दिखाई देते हैं, तो स्ट्राइक पर सामना करेंगे बल्लेबाज मिस्टर योगेश पेंटकर। 68 रन का टारगेट है, लंबा टारगेट। लगभग सोहेल शेख ने भी अच्छा स्पेल किया अपने टीम के लिए। उसे अंदाज से दर्पण आचरेकर की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 5 गेंदों में 14 रन की पारी खेल चुके, बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन एक संयम दिखाना होगा, उस संयम के साथ योगेश पेंटर का साथ देना होगा सर। और योगेश को ओवरटेक किया गया जिस तरह से प्रारंभिक बल्लेबाज है, और अब दर्पण बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर, 1 छक्का 1 चौका उनके बल्ले से 2 डबल भी हैं।
स्विप करने की कोशिश यहाँ पर लगभग पूरी तरह से बल्लेबाज के लिए ललचाया, चकमा खा गए बल्लेबाज। स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, मन बना के खेलने का प्रयास योगेश पेंटकर का। इस बार बहुत अच्छी गेंद लोकेश चौहान की, अच्छा कंट्रीब्यूशन, 25 रन बनाए आज इस मुकाबले में पहली पारी में, और इनके 25 रनों के बदौलत स्कोर जो है ना 67 तक पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छा बैटल है लोकेश चौहान बनाम योगेश पेंटकर। ऑफ स्टंप की प्रहार गेंद को पिच किया यहाँ पर, जिस खिलाड़ी से चर्चा कर रहे थे, लेकिन गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, एमसीटी चौका 4 रन के लिए। पिछले मैच में आपने देखा था नाना, 2 खिलाड़ियों ने गलती की थी, एक अक्षय दूसरा बबलू, दोनों ने बहुत बड़ी गलती की थी और वो 4 रन दिए थे, मतलब वो 8 रन दिए थे। उसके बाद में परिणाम आपने देखा है, यह खराब फील्डिंग, सोनू राणे वहां मौजूद थे, जल्दी से आपको वो नीचे झुकना था, आप नीचे नहीं झुके तो उसके बाद में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई है। 4 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ, 28 रन एक विकेट के नुकसान पर 68 रन का टारगेट है। तो बॉल गेंदबाज लोकेश चौहान अच्छी ड्राइव की है, गेंद को वाइडिश लॉन्गा से गेंद को उठाते फील्ड करते तो का 1 रन पूरा किया। एक संयम दिखाया आप बल्लेबाज योगेश पेंटकर ने। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन इस ओवर में। दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे। पहली गेंद बिंदी गेंद है, उसके बाद में चौका और सिंगल आ गया। अभी 3 गेंदों का खेल और 5 रन इस ओवर में अभी तक आए हैं, तो अच्छा ओवर कट रहा है। स्ट्राइक पर दर्पण आश्रय करे, सामना करेगी इस अगली गेंद का। फिर से एक बार स्वीप करने की कोशिश, गलती बनी, फुल टॉस से मेरे ख्याल से धीमी गति की गेंद। बल्ले का यहाँ पर देख रहे थे, बल्ला घुमाया था जरूर, लेकिन 5 गेंदों में जो 14 रन की जहां पर चर्चा कर रहे थे वो यहाँ पर पारी सिमट गए। यहाँ पर विकेट नंबर 2, जो पहला विकेट जल्दी से हुआ, दूसरा विकेट दर्पण आश्रयकर का 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन, 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये खराब शॉट था बल्लेबाज का, क्योंकि काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। अच्छी बात लोकेश चौहान के लिए ये थी कि स्टंप की तरफ थे, उनका टारगेट बहुत अच्छा था, निशाना सही था, स्टंप के अंदर गेंदबाजी। आणि या मॅच मध्ये फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गोल। लोकेश चव्हाणची गोलंदाजी पॉवरफुल। बिल्कुल सही सर, आपकी बात है। ये लोकेश चौहान की बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज के लिए मौका ही नहीं दे रहे। खासतौर से इस खिलाड़ी की चर्चा करें तो दर्पण आश्रयकर की बल्लेबाजी में लग रहा था यहाँ पर साथ देना चाहते, लेकिन खराब शॉट के साथ विकेट निकला। दूसरा विकेट 2 विकेटों के नुकसान पर 29 रन स्कोर बोर्ड पर। नए बल्लेबाज और एक अनुभवी खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट का बहुत सारा अनुभव है, ढेर सारी क्रिकेट की कहानी भी उनके साथ जुड़ चुके हैं, जो सभी दर्शकों की निगाहें उनके ऊपर है। वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए चलते हुए मिस्टर सर सुनील मालवडकर, इनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, शानदार मुकाबला, 1 विकेट से कहानी को बदलते हुए आपने देखा है। और इस मैच में लोकेश चौहान का योगदान बहुत शानदार रहा बल्ले के साथ। अब गेंदबाजी में ये सरदार असरदार बन रहा। इस ओवर में 4 गेंदों में 5 रन और 1 शिकार आपने किया, और बल्लेबाज दर्पण बैक टू द पेवेलियन चले गए। लोकेश ने तो मेरे ख्याल से कमाल की गेंदबाजी की। इस ओवर में एक बड़ा विकेट, ब्रॉड ब्रेक थ्रू यहाँ पर लगाया अपनी टीम के लिए। वो लोकेश चौहान की यहाँ पर कारनामा कर चुके। स्ट्राइक पर सामना करके सुनील मालवडकर, नॉन स्ट्राइक पर योगेश पेंटकर। अच्छी गेंद जड़ों में डाली हुई गेंद को हल्के से टैप किया, पर शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, सीधा यहाँ पर निशाना बनाना चाहते थे, आबुद मुजावर थे यहाँ पर। सही निशाना लगता ना नाना तो बिल्कुल काम हो जाता, और उनको पता है कि योगेश पेंटकर का विकेट उनको चाहिए। अगर ये विकेट मिलेगा ना तो कमबैक करने का, वापस आने का, वापसी का, बिगुल बजाने का मौका मिलेगा। इसीलिए वो टारगेट किया गया था। एक स्टंप दिखाई दे रहा है जहां वो खड़े हैं, एक बार फिर वो आसान नहीं है, लेकिन कोशिश की थी। कोशिश करना बहुत जरूरी है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात है आपकी। मैदान पर सभी खिलाड़ी का यही कोशिश है, 100% हमेशा योगदान देना चाहिए, लेकिन बैकअप भी अच्छा सर था वो अंकुश बांबाडेकर सर का। स्कोर भी वहीं पर रुका है, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्कोरिंग की जानकारी देने के लिए मेरे साथ मिस्टर सर अखिल परब, कमेंट्री बॉक्स में बेहतरीन आवाज भी आज सुनाई मिस्टर सर श्याम कलंगुटकर, अंग्रेजी कमेंटेटर, उन्हीं के साथ समीर पांड्रे, और मेरे साथ प्रशांत आदवड़े सर।
स्कूप करने की कोशिश, गेंद के लेग स्टंप गिरने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल मिला गेंदबाज को। यहाँ पर लोकेश मीना यहाँ पर विकेट के पीछे गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर रुक चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर, 30 रन स्कोरबोर्ड पर। MTC बट 2025 महेश कोनाडकर साहब, उसके बाद अंबाजी कोनाडकर, संजय नागवेकर टूर्नामेंट के आयोजन करता, बहुत ही बेहतरीन आयोजन। बाबेश साईराज मालवन और आई मौली बकुडार के बीच एक तगड़ा मुकाबला। टेनिस क्रिकेट .in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। अभी तक के आंकड़े यह बता रहे हैं कि 3 दिनों तक लाइव जो एक्शन मतलब क्रिकेट का खेल चलाना, तो टेलीकास्ट बहुत बढ़िया रहा। 12,43,000 दर्शकों ने ऑनलाइन टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया। 21 लाख का एक मैजिकल फिगर, एक प्राउड मोमेंट सबके लिए है। टेनिस क्रिकेट .in ने पूरा किया। आने वाले 2 दिनों में ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं। अब 7,000 दर्शक जो है ना, ये मुकाबला देख रहे हैं, उनको भी पता है ये बहुत बड़ा मुकाबला है, कड़ा संघर्ष होगा। गेंद और बल्ले के बीच नाना बहुत बड़ी जबरदस्त जंग होने वाली है। और सुरेश रैना का क्रिकेट ग्राउंड पर एक बहुत ही बेहतरीन खेल दर्शकों को देखने का मौका मिलेगा। आने वाली अभी तक 30 गेंदें बच चुके और मुकाबला जीतने के लिए 38 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर सुनील मालवणकर और बॉलिंग में परिवर्तन, लोकेश मीना बॉलिंग मार्ग पर, लंबा रन 10-12 कदमों का लोकेश मीना, राइट टाइम ओवर द विकेट। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्की सेकंड को टैप किया, वाइड लगा पीछे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, जब्बार क्वेरी स्टाइल में खेलने की कोशिश, लेकिन लगभग गेंद को फील्ड करते तो गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच रही है 4 रन के लिए। नाना, मला आता सध्या मराठी सिरियल चालू आहे, त्या सिरियलची आठवण झाली। हा फटका पहा, काय फटका होता। ऑफटॉमच्या बाहेरचा चेंडू खूप सुंदर ड्राईव्ह केला, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जातोय। सुख म्हणजे काय असतं त्याची अनुभूती देणारा हा फटका। सुख म्हणजे काय असते, ही जी सिरियल आहे ना सध्या गाजते, आणि क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह होता। हेलो, सुनील मालवणकर देख सकते हैं कितना एफर्ट यहाँ पर उनके साल और उसके साथ फिटनेस, ये फिटनेस मायने रखता है क्रिकेट में। कोई भी कहा अभी क्रिकेट हो, यहाँ पर फिटनेस मायने रखता है, वो फिटनेस का यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर चमखम यहाँ पर दिखाया सुनील मालवणकर ने। स्कोर 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मीना गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब बल्लेबाज की बात करते तो स्ट्राइकर इन पर योगेश पेंटकर 2 चौके जड़ चुके हैं, थोड़ा संघर्ष पर है, मन बना के खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं तब जाकर इनको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन यह पैटर्न इंटरेस्टिंग है, 2 बादल जब टकराते हैं ना तो विस्फोट जरूर होता है। स्ट्राइक पर योगेश पेंटकर, जो पिछले मुकाबले अर्धशतक बनाए, 56 रन की यादगार पारी खेली थी, वो योगेश पेंटकर स्ट्राइक एंड पर। अच्छी गेंद हल्की से ढीले हाथ से गेंद को खेला, यहाँ पर डी बैक स्कोर से गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ संयम दिखाई दे रहे योगेश पेंटकर, 1 रन के मिला के स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुनील मालवणकर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और योगेश पेंटकर जिनके 9 गेंद यहाँ पर इस्तेमाल किए और 9 गेंदों में 13 रन की पारी खेल चुके हैं सर। स्ट्राइक पर यहाँ पर सुनील मालवणकर बैक टू द बॉलर करने की कोशिश जरूर यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी है। लोकेश चौहान गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया। लोकेश मीना, लोकेश चौहान बहुत ही बेहतरीन, दोनों लोकेश हैं और दोनों ने इंप्रेस किया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। जब मीना नहीं चलते तब चौहान चलते हैं, जब चौहान नहीं चलते तब मीना चल रहे हैं। तो मीना और चौहान की कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, जहाँ पर देख सकते हैं आप लोकेश मीना गेंदबाजी में के उतरे। लोकेश चलिए यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं, स्विचेट करने की कोशिश, कोई सा अलग करने की कोशिश योगेश पेंटकर के, लेकिन सोहेल नाइक जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा किया। सर ऑफिशियल्स का इशारा हमारे तरफ बनता हुआ लेग बाइस का इशारा। राजू जी चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत ही बढ़िया काम आपने किया है। अपने बॉलिंग मान पर बिना तैयार 38 रन स्कोरबोर्ड पर। ये देखिए आड़े वाले से गेंद को खिला, एडिश लगन से खिलाड़ी सोहेल शेख गेंद को उठाते थ्रो करते और 1 रन खाते में जुड़ता। अच्छी गेंदबाजी, खास तौर से काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज लोकेश मीना ने। और की 4 ओवर का खेल समाप्त हो 39 रन स्कोरबोर्ड पर और आने वाले अभी तक 4 ओवर बच चुके हैं और मुकाबला जीतने के लिए 29 रन की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन खेल मैदान के अंदर, 11:57 का समय और लाजवाब खेल। समीकरण आपके सामने 24 गेंदों में 29 चाहिए, लेकिन कंपैरिजन
30 में 3 और 39 में 2 है। तो इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन भव्यांश स्पोर्ट साइब मालवण टीम का रहा है। इस बार साई स्पोर्ट की बात करें तो हमेशा मैंने देखा है जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट गोवा में होते हैं, सुदीर्घ में होते हैं, तो साइस स्पोर्ट मालवण साइस 11 की टीम जो है हमेशा इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनती है। अब फिलहाल वो आपको किस्सा भी बनना है और ये कहानी बिल्कुल हिस्टोरिकल आपको बनानी है। गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा। लोकेश चौहान को बुलाया गया। बल्लेबाज की बात करें तो बस सुनील एक एंड पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे, योगेश पेंटर के ऊपर भी निगाह रहेगी। लेकिन एमसीटी ओवर बहुत ही क्रुशियल रहेगा। अब फिलहाल एमसीटी ओवर का आना बाकी है। एमटीसी ओवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एमटीसी ओवर आना अभी भी बाकी, सॉरी एमसीटी ओवर, करेक्शन। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, फील्डिंग में तकदीली, दर्शक काफी संख्या में मौजूद, बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। बाबेश एक बड़ी टीम है मैदान के अंदर। एक तरफ आईबा माउली कुडाल, 2 बड़े खिलाड़ी। गेंदबाजी करने गेंदबाज अपने बोरिक मार्ग पर लोकेश चौहान। लोकेश का ये बात दूसरा ओवर, पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे। दूसरे ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा, कंट्रोल नहीं है। मिस्टर इस्टा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 40 रन। इट्स व्हाइट बॉल। इंपॉर्टेंट मैच है, 4 ओवर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। सुरेश रैना ग्राउंड पर यह मुकाबला आप देख रहे हैं। ऑनसर पर खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग। सोनू कानड़े वहां मौजूद है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन मिलेगा। पहली गेंद पर नाना व्हाइट बॉल, दूसरी गेंद पर सिंगल। और साइड स्क्रीन समोरदेव प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे आपण तिथून बाजूला व्हा, महत्वाचा सामना आहे। साइड स्क्रीनच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती है आपण तिथून बाजूला व्हा। साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक खड़े हैं या बैठे हुए हैं उनके लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा वहां से आपको हटना है। फिलहाल इंपॉर्टेंट मुकाबला है। बल्लेबाज योगेश पेंटर ऑन स्ट्राइक। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 41 रन स्कोर बोर्ड पर है। मिस्टर एस्टा से 40 और उसके बाद वो सिंगल लिया गया बल्लेबाज सुनील द्वारा। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज लोकेश चौहान, बैकफुट पर चले गए। स्ट्रोक तो बहुत जबरदस्त है। खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है। कवर पॉइंट पर आके गेंद को फील्ड किया गया। थोड़ा अच्छा रही है, कवर करने के लिए खिलाड़ी है। तो 1 रन से दूसरी की तरफ चले गए। 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाज 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता। रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल 43 रन स्कोरबोर्ड पर है। 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर और बॉलिंग मार्ग पर लोकेश चौहान। एक अच्छी गेंदबाजी दोनों के साथ द्वंद्व दिखाई देगा, खासतौर से योगेश पेंटर, उन्हीं के साथ सामने गेंदबाज जो लोकेश मीना और उनके साथ लोकेश चौहान। लेकिन बॉलिंग में लोकेश चौहान में भी अच्छी गेंदबाजी की, काफी प्रभावित किया दोनों खिलाड़ी ने। आई मौलिक कुडाल से खेल रहे, बहुत ही प्रभावित किया। इस बार गेंद को ड्राइव किया। 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए वापस आएंगे, नहीं जोखिम नहीं उठाएंगे। 1 रन मिलेगा। गेंद को फील्ड किया गया मिड ऑफ क्षेत्र में। सोहेल शेख वहां मौजूद है। वो कहां से कहां जा रहे हैं? इससे पहले कमबैक से राइट साइड की तरफ थे, अभी फिलहाल देखिए राइट हैंडेड बल्लेबाज है। एंड चेंज हुआ है, इसलिए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग मैच। गेंदबाजी करने के लोकेश चौहान तैयार। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका 44 पर। बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर सुनील और बेहतर खिलाड़ी है, बेहतर फील्डर है सोहेल। ऑन साइड पर दिए घुमा के मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। सुनील यह है सबसे कातिल, इन्होंने जीता है सबका दिल। और सुनील आपका बनेगा रील, क्योंकि ये गेंद रास्ते पर चली गई है, मिड विकेट पर चली गई है, बहुत दूर चली गई है, वापस नहीं आने वाली है। मराठीमध्ये सांगायचं झालं जा शोधून आण, हा चेंडू परत येणार नाहीये। कड़क शॉट है यहाँ पर सुनील मालवणकर, यही ताकत है, बहुत ही शेर मैदान पर है। ये देखिए बेहतरीन इस गेंद के ऊपर कमबैक किया है पर इस गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए, जहां पर उसके पहले की गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट निकला मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन उसके बाद उसकी गेंद के ऊपर थोड़ा सा कमबैक किया गेंदबाज लोकेश चौहान ने। 50 रन स्कोरबोर्ड पर है।
इस तरह की कुछ गेंदें आनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा इस मुकाबले के लिए। बेहतर मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए लोकेश चौहान, सामना करने के लिए सुनील। ऑफसाइड पर फ्लैग थ्री पे गली स्ट्राइक कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग अप पर, कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर मौजूद। इस बार अच्छे गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड पर, लॉन्गर पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 51 स्कोर बोर्ड पर है और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आपके पास 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। तो मैजिकल ओवर की जरूरत नाना, और ड्रीम ओवर मतलब वो एक बार फिर ड्रीम बॉल की जरूरत है और विकेट आपको गुच्छे में चाहिए, तब जाकर आप कमबैक करेंगे, नहीं तो अपोनेंट टीम ने शिकंजा कस लिया है। 18 गेंदे 17 रन की जरूरत। जरूर आपकी बात सही है, मेरे ख्याल से गुच्छे में विकेट लेने चाहिए आई माउली कुडाल क्रिकेट टीम के लिए, जो साझेदारी बन रहे, खासतौर से योगेश पेंडकर 16 रन बनकर खेल रहे और उन्हीं के साथ सुनील मालवणकर जिन्होंने 9 गेंदों में 16 रन की पारी खेल रहे। तो स्कोर वहीं पर रुका है 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए भव्य स्पोर्ट्स साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम के लिए 17 रन की जरूरत। नाना, इस मुकाबले में एक बेहतर ओवर चाहिए आई माउली कुडाल टीम के लिए। 18 गेंदों में 17 चाहिए और हमारे कॉम्बॉक्स में अखिल परब एक ऐसे स्कोरर है जो इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्कोरर है तो कमेंट्री करना बहुत आसान हो जाता है। गोवा में जितने टूर्नामेंट होते हैं, सिंधुदुर्ग में जितने टूर्नामेंट होते हैं, अगर अखिल आपके पास है तो डिजिटल स्कोरर की भी जरूरत नहीं है, इतना काम वो करते। अजीत, आपको एक बार फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अखिल भाई बढ़िया काम। कमेंट्री करना बहुत आसान, बहुत सारे एक बार फिर रिकॉर्ड मिलते हैं, फील्डर के नाम मिलते हैं, एक बार फिर बाकी बताने की जरूरत नहीं है। अब ये ओवर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सारी खिलाड़ीदारी के अंदर ऑन साइड पर गेंद को खेलते हैं, लॉन्ग ऑन बॉडी के तरफ पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली है। सुनील, मैंने पहले कहा यह है सुनील, यह है सबसे कातिल, इनके पास है जबरदस्त स्किल और जीता इन्होंने सबका दिल। सुनील, आपका बनेगा रील, आपका बनेगा रील। दूसरी बार गेंद को लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया है। सभी का दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने, सभी दिल की यहाँ पर जीत लिया इस खिलाड़ी ने। सुनील मालवणकर क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां पर आक्रामक बल्लेबाज कर रहे हैं। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर। अब सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो लाइसेंस है बल्लेबाजों के लिए। अगर अच्छा कनेक्शन करेंगे और ओवर द टॉप खेलेंगे तो गेंद बॉडी लाइन के बाहर ही जाएगी। स्कोर मैं आपको जरूर बताऊंगा। स्कोर कुल मिलाकर टोटल बन गया है 56। अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर। समीकरण आपके पास 16 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। बाबेश की टीम का पलड़ा भारी और अच्छी गेंद। इस तरह से आपको गेंदबाजी करनी है। सोहेल के पास वो काबिल थे, इस तरह से वो 2-4 गेंदें आएगी ना तो नाना कमबैक करने का मौका मिलेगा। सोहेल को यहाँ पर कोशिश जरूर कर रहे हैं सोहेल शेख का, उनके लिए भी मौका बन रहा है। अपनी टीम के लिए कप्तान है, कप्तान के साथ ऐसी गेंदबाजी करे, बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। स्ट्राइक पर योगेश, मौका तो बंद रहा था लेकिन देखिए विकेट कीपर ने कुछ गड़बड़ की मेरे ख्याल से। सोनू राणे थे यहाँ पर। हृदयाची मांडली धडधड मैदानात या ठिकाणी आपण पाहू शकता सुरू झाली धडपड आणि मोक्याच्या क्षणी विकेट कीपरने केली गडबड। आवाज आला, हलकासा आवाज आला। जर कॅच घेतला असता तर पुन्हा एकदा कलाटी देणारा क्षण आपल्याला बघायला मिळाला असता। और एक अच्छी कड़क शॉट, बेहतरीन शॉट, वाइड फ्लॉग ऑफ रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। योगेश पेंडकर बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है और ये क्रिकेट के परिभाषा को जानते हैं। आपने उनको मौका दिया, किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, लेकिन योगेश है इनके लिए चौका नहीं मिलेगा, उनको छक्का मिलेगा। सिक्सर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। 62 रन स्कोर बोर्ड पर। अड़बले सेकंड को खिलाया पर शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इनको उठाते थ्रो करते 1 रन और पूरा किया अपने टीम के लिए। अब तो औपचारिकता बच चुके, 5 रन की जरूरत है। आने वाली 12 गेंदें और मुकाबला जीतने के लिए भव्य स्पोर्ट्स साइश 11 मालवण क्रिकेट टीम के लिए 5 रन की जरूरत। शानदार बल्लेबाजी सुनील द्वारा इस मुकाबले में इन्होंने कमाल का काम किया। योगेश पेंडकर कुछ अच्छे स्ट्रोक इन्होंने खेले, बाकी अगर देखे तो कुछ शॉट इस तरह से थे जिसमें इनका कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे गाडी इनकी पट्टी पर आ रही है। उद्या काय होणार हे प्रेक्षकांना माहिती असणं गरजेचं आहे। उद्याचा दिवस मुंबईहून ऐश्वर्या सुर्वे येणार आहे,
राकेश कहर गुजरातहून, कृष्णा सातपुते पुण्याहून, धनंजय बिनताडे पुण्याहून या ठिकाणी दाखल होईल. राजेश सोरटे सारखा खेळाडू पुण्याहून दाखल होणार आहे. एजाज कुरेशी या मैदानावरती परिचित येणार आहे. विश्वजित ठाकूर ज्याने हे मैदान गाजवलेलं आहे. आशिष मेहरोल देखील या स्पर्धेच्या दरम्यान दाखल होणार आहे. आयकॉन खेळाडू उद्याचे पहा, उद्याचे आयकॉन खेळाडू ऐश्वर्य सूर्य, राकेश कहर, कृष्णा सातपुते, धनंजय भिंताडे, राजेश सोरटे, एजाज कुरेशी, विश्वजीत ठाकुर, आशीष मेहरोन. अब जाकर इस मुकाबले में मालवण टीम का पलड़ा भारी है. स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल टोटल बन गया है 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर. गेंदबाजी में सोनू को बुलाया गया. सोनू राणे. इट्स नो बॉल और फ्रीट. क्या योगेश पेंटकर इस गेंद का फायदा उठाएंगे? ओहो, साइड पर खेलना चाहते थे. लॉन्ग राइट क्षेत्र में गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं गया. गति परिवर्तन किया गया था गेंदबाज सोनू द्वारा. जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है. 4 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन. सेमीफाइनल में आपको टिकट जरूर मिलेगा. बहुत अच्छी गेंद है, टप्पा खाते अंदर की तरफ आई. डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ. अंपायर की तरफ से इशारा बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसका मतलब गेंद जो है ना बिल्कुल बल्ले को लगी है. अब 3 रनों की जरूरत है. क्या सुनील जिस अंदाज से इन्होंने बल्लेबाजी की है इस मुकाबले को समाप्त करेंगे? ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद को खेला गया. भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं. हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं. बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं. गेम चेंजर सुनील, जिन्होंने जीता है सबका दिल, वो है काबिल. ये है एक बार फिर कमाल के खिलाड़ी जिन्होंने दिखाया अपना स्किल. और सुनील आपका बनेगा रील, आपका बनेगा रील. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सुनील. सुंदर फटकेबाजी या मैदानावर केलतोय तो म्हणजे सुनील मालवणकर. अक्षरशः मैदानावर त्यानं सर्व क्रीडारसिकांचं मनोरंजन केलंय. तब्बल 44 फटकेबाजी केली, ऐनवेळी विकेट गेले, परंतु त्याहीपेक्षा खरोखर योगेश पेंटकरला साथ दिली सुनील मालवणकरनं. आणि खरोखर आपण स्क्रीनवर बघू शकताय काय फटका सजवला होता तो सुनील मालवणकरनं. आणि त्या सुनील मालवणकरची भरपूर क्रिकेटची माहिती आपण पाहिली, परंतु या सामन्यात मात्र आपली वरचष्मा गाजवलाय तो सुनील मालवणकरनं. जी हाँ, ये हाईलाइट आप देख रहे हैं. योगेश पेंटकर और सुनील, खास करके सुनील आप आए और सबके ऊपर छाए. और एक जो शॉट आपने खेला था ना रास्ते पर, वो कमाल का था. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ और खराब फील्डिंग थर्ड मैन पर, और उसके कारण गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई. प्रेशर रिलीज हुआ, उसके बाद में स्वीप किया गया था ऑन साइड पर. सुनील ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और सबका दिल जीत लिया है. अब कल की कहानी बहुत यादगार रहेगी. कृष्ण लक्ष्मण सातपुते आने वाले हैं और क्रिकेट का सम्राट इनको कहा जाता है. तो दोस्तों मैं और आपको बताना चाहूंगा, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा ऐश्वर्य, राकेश कहर, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, धनंजय बिनताडे, राजेश सोरटे, एजाज कुरेशी, विश्वजीत ठाकुर, आशीष मेहरोल. दिग्गज खिलाड़ी इस मंच पर जलवा दिखाने के लिए आने वाले हैं. संजय जी चलते हैं एक बार मैन ऑफ द मैच की तरफ. संजय जी, हाँ जी बहुत अच्छी लगी आपकी मजा आया. और अब फिलहाल शाम हमारे साथ जुड़ेंगे. शाम एक बार फिर आइए और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच सुनील मालवणकर. 12 गेंदों में इन्होंने रन बनाए हैं 27. कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी. आइए सुनील मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए. मीना, लोकेश मीना, लोकेश चौहान, आपको भी आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ. आप आइकॉन खिलाड़ी हैं. लोकेश मीना एंड